Hello everyone and welcome to Laser 360 Clinic. Today we are in conversation with Dr. Neeraj Goel, Senior General Laparoscopic and Laser Surgeon at Max Patparganj. Sir, today we would like to talk about another proctology disease which is fistula. So people are very dreaded about this. बहुत डरे रहते हैं कितनी कॉम्प्लेक्स बीमारी है. आज हम आपसे जानना चाहेंगे सर, व्हाट इज़ अ फिस्टुला? या फिस्टुला इन एनो या एनल फिस्टुला, अगर बहुत कन्वेंशनल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो उसको लोग भगंदर भी बोलते हैं. जी सर. सो एनल फिस्टुला या फिस्टुला इन एनो इज अ कम्युनिकेशन, इट इज अ टनल बिटवीन एनल कैनाल और स्किन जो उसके आसपास की है. सो दिस इज अ कम्युनिकेशन और अ टनल with two openings. One opening is towards the anal canal. So the tunnel runs in the soft tissue and somewhere around the anal canal in the hip area or just around the anal opening, this external opening is there. So it starts from the inside, that is from anal canal, the tunnel comes and then it opens on the skin surface. So this kind of complete communication from anal canal till the skin is anal fistula or fistula in anal. ओके सर. क्या रीजंस होते हैं या क्या कॉज होते हैं सर फिस्टुला होने के किसी को? सबसे कॉमन कारण फिस्टुला बनने का है एनल कैनाल की ग्लैंड के वॉल में कुछ ग्लैंड्स होती है, एनल ग्लैंड्स. जो एनल ग्लैंड्स हैं एनल कैनाल की वॉल में, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है. ओके. दिस इन्फेक्शन लीड्स टू पस फॉर्मेशन और वो पस धीरे धीरे करके ट्रिकल करता है या किसी ना किसी डायरेक्शन में स्प्रेड करता है. So an abscess in the wall of the anal canal, usually sphincters के बीच में glands और उनसे वो infection leading to pus formation. So this abscess in the wall of the anal canal which gradually spreads and it doesn't dry up due to so many factors. The person's immunity may be low or the infection may be more severe. So whenever it trickles in any direction, it spreads in any direction and gradually it comes out and opens on the skin surface. So in this manner the anal fistula develops. In addition to this, there may be some specific diseases, tuberculosis, Crohn's disease, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, इन्फेक्शंस हैं जिनसे इस तरह का anal fistula बन सकता है. But the commonest is the infection of anal gland leading to abscess formation which leads to fistula formation. ओके सर. अगर हम पेशेंट की तरफ से देखें सर, तो हमें कैसे पता चलेगा, किसी पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि उन्हें फिस्टुला है? पेशेंट को एक छोटी सी फुंसी जैसा, एक फ्रंकल, एक बॉयल की जैसा कुछ अपीयर होगा फर्स्ट टाइम एनल ओपनिंग के सराउंडिंग एरिया में कहीं पर भी. इट मे बी एनीवेयर इन 360 डिग्री अराउंड द एनल ओपनिंग एट एनी डिस्टेंस. 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर पे एनल कैनाल की वर्ज से एक इस तरह का कोई छोटा सा बॉयल या फुंसी फोड़ा जैसा अपीयर होगा जो कि थोड़ा पेनफुल भी होगा और वो फिर उसके बाद बर्स्ट कर जाएगा विच विल लीड टू रिलीज ऑफ द पस एंड इन्फेक्टेड मटीरियल. सो फर्स्ट टाइम द पर्सन विल एक्सपीरियंस दिस एंड मोस्ट ऑफ द पीपल विल assume that this is a boil, it is a funsi or foda, common thing, and which has led to this. But this will not end here. Sometimes it may dry up like this and then it may continue again accumulating the fluid from inside in the tract, and after a few weeks or few months again the patient will have same symptom. Or if the person goes to the doctor, he may be treated by medicines. So many patients, they go first to the physician or maybe gynecologist, ladies they go to the gynecologist. So there the treatment may be on the basis of a fruncle or a boil. So in those cases it will heal, but due to the communication from inside, it will not completely close or it will not permanently heal. After a few weeks or months, again the same thing will happen. So this will keep on happening. So a classical patient of fistula, वो जब हमारे पास आते हैं तो ये बताते हैं कि ये करीब 6 महीने 1 साल से है, बार बार वहाँ पे फोड़ा बनता है और फूट जाता है एंड इट इज नॉट क्लोजिंग. पेन होता है लेकिन अब पेन कुछ नहीं है, ड्राई है, मैं जब दवाइयाँ ले लेता हूँ तो ठीक हो जाता हूँ. दिस इज हाउ द पेशेंट्स ऑफ एनल फिस्टुला क्लासिकली प्रेजेंट. ओके सर. अब जैसे कोई पेशेंट प्रेजेंट करता है तो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या बोलना चाहिए कि पेशेंट को क्या करना चाहिए या कब आके आपके पास दिखाना चाहिए उसे? एक कॉमन रिकमेंडेशन है, कॉमन एडवाइस है सभी बीमारियों के लिए, सभी पेशेंट्स के लिए, अर्लियर द बेटर. जब भी कोई सिम्टम है एक एक्सपर्ट एडवाइस ले लीजिए.
हम्म। एक्सपर्ट एडवाइस से हमें ये पता चल जाएगा कि ये कुछ और तो नहीं है, छोटी सी प्रॉब्लम होगी, वहीं के वहीं वो ठीक हो जाएगी, आगे के लिए प्रिकॉशंस पता चल जाएंगे, बढ़ेगा नहीं। घर से 200 किलोमीटर जाइए तो 200 आना पड़ता है, अगर सही 500 किलोमीटर चले गए तो 500 आना भी पड़ेगा। तो बॉडी में तो वो 500 का 600 700 हो जाता है, बिकॉज मल्टीपल ऑर्गन्स, ऑल द ऑर्गन्स दे वर्क इन सिंक, इन हार्मनी विद ईच अदर। सो जितना जल्दी कोई सिम्टम अगर इस तरह का कुछ भी दिखाई दे रहा है बॉडी में, तो एक्सपर्ट को कंसल्ट कीजिए, फिजिशियन के पास जाइए, सर्जन के पास जाइए, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, अपने आप वो आपको बता देंगे कि नहीं ये प्रॉब्लम इस स्पेशलिटी की है, आप उनको कंसल्ट कर लीजिए। सो आई विल सजेस्ट व्हेनेवर यू सी समथिंग लाइक दिस, if 1 or 2 days maximum you wait, or sometime you wait, but if it is not resolving, you should consult immediately. श्योर सर। जो कॉमन ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं फिस्टुला के सर, उनके बारे में ब्रीफली बताइए। कॉमन ट्रीटमेंट एनल फिस्टुला के लिए ओनली वन परमानेंट सोल्यूशन इज देयर, एंड दैट इज सर्जरी। चाहे वो किसी भी मेथड से किया जाए, बट सर्जरी इज द ओनली मेथड एज फार एज परमानेंट ट्रीटमेंट इज कंसर्न। हाँ, कुछ वेरिएशंस हैं जो कि हम ये कह सकते हैं मिनिमम सर्जरी हो सकती है, कुछ शार सूत्र जैसे ऑप्शंस हैं, लेकिन जहां तक ट्रीटमेंट ऑफ एनल फिस्टुला इज कंसर्न, हमें एंटीबायोटिक की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ इन्फेक्शन है, पस कलेक्शन है। बहुत सारे पेशेंट्स तो एब्सेस के साथ प्रेजेंट करते हैं, बहुत बड़े कलेक्शन के साथ प्रेजेंट करते हैं, जिनको सिंपली इंसिजन एंड ड्रेनेज, जैसे फोड़े में चीरा लगा देते हैं, एब्सेस में चीरा लगा दिया जाता है, वो ट्रीटमेंट करवा के भी हम लोगों के पास आते हैं। सो दिस इज ऑल पॉसिबल कि इस तरह से पेशेंट प्रेजेंट करे, बट at the end of the day, the final treatment is removal or taking care of that tract, and that is only by some method of surgery. तो सर, आप अपने पेशेंट्स जिनको ऐसी कुछ शिकायत है या फिस्टुला की प्रॉब्लम है, उन्हें क्या एडवाइस करेंगे? मैं यही कहूँगा कि एक तो कभी भी पेनफुल कोई कंडीशन है, इसका मतलब उसमें इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है। साथ में अगर पस डिस्चार्ज आ रहा है तो ये कंफर्म हो जाता है कि इन्फेक्शन की वजह से प्रॉब्लम है। तो जो भी एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स या साथ में सपोर्टिव मेडिसिन दी जा रही हैं, वो जरूर लीजिए, ताकि इन्फेक्शन जल्दी से जल्दी वहाँ ड्राई रहे और वो स्प्रेड ना करे, अननेसेसरली जो कैविटी का उसका साइज ना बढ़े। सेकेंड, उसके साथ में लोगों को एडवाइस हमेशा एक कॉमन होती है कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। बेसिक कॉज इन सारी प्रॉब्लम्स का है ज़्यादा देर तक मोशन के लिए बैठे रहना, बहुत देर तक जोर लगाना, या एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन, डेली मोशन ही नहीं आ रहा है, हार्ड स्टूल है। तो ये ध्यान रखें कि अपने लाइफस्टाइल से, अपने खाने पीने से, नींद पूरी रख के, ज़्यादा चिंता न करके हमें कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करना है। साथ में अगर इस तरह का कोई सिम्टम फिस्टुला की ओपनिंग वाला और डिस्चार्ज वाला है, तो हल्के गुनगुने पानी में क्लीनिंग इज अ वेरी गुड आइडिया। सिट्स बाथ एज वी कॉल इट, after motion, sit in lukewarm water in a tub with some betadine solution or potassium permanganate, an antiseptic solution added to that water. So in this manner, cleaning of that area is important. Local ointment with a gauze piece application that helps कि वहाँ से उसके जो ओपनिंग है उसके ऊपर एक कोई एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट साथ में गॉज पीस लगा लीजिए, और एक माइक्रोपोर या पेपर टेप जो आता है, डॉक्टर टेप, वो लगा लीजिए, ताकि वो फ्लूइड इधर उधर स्प्रेड ना हो, वो उसमें एब्जॉर्ब होता रहे और अंदर कलेक्ट भी नहीं होगा। इसके साथ में कंसल्ट करें और जैसे भी स्टेज होगी उस हिसाब से आगे उसका मैनेजमेंट करें। थैंक यू वेरी मच सर फॉर शेयरिंग ऑल दिस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।